Good morning to all. I am Mohammad Navees sir and welcome to Fajandar Junior College Wahur, Department of Sociology. We already started a topic that name is Processes of Social Change in India. Today we have to start the new part of the chapter, that is a digitalization. Here one of the definition of digitalization given by the Gartner, I am writing here. Definition is digitalization change of business, revenue, here is the definition given by the Gartner, that is a digitalization is the use of digital technologies. We are learn from the digital technologies, that is a use of digital technologies, and change of business model, that is normally used in the business, change in the business model and provide a new revenue and value producing opportunities. The first digitalization word firstly used by the company, that is a trading company, is Capgemini. And digitalization we are seeing around us, we are seeing the so many digital appliances are used by us. So that is the various types of digital technologies are used by us, that is a digitalization. Now we have to see the characteristics of digitalization. Here is the first characteristic is given in our textbook, that is computerization. Computerization means in the digitalization, computer is very necessary. The computer, using of computer in the technologies, for example, any of the company are use the computer for making the products. The machinery is also installed computer, that is the uses of computer, and many of the
things are made by the computers. So that is the computerization is very necessary in the digitalization. We are to taking the online examples of the online teaching. The Android phone is one of the type of computer that also gives you to education. That is, a computerization is one of the characteristics of the digitalization. Now next characteristic is frequent change. Means continuous change. In the digitalization, we are seeing the frequent changes are occur. For example, your handset. Before 10 to 15 years, we are seeing the simple phone. That also coming in nowadays, but the peoples are using the smartphones. That is a change in the technology. People are using the desktop computer, now they are used the laptops. That is a frequent change. People are used the washing machine, that is a two chambers washing machine, but nowadays we are seeing the fully automatic washing machines. That is a changes in the technology that is in the possible in the digitalization. That's why one of the characteristics of the digitalization is frequent change. Next is speed and accuracy. In the process of digitalization, speed and accuracy are seen. For example, we are made the one glass, water glass. Okay, so we are made by the hand, so that is require the so much time, and one time you have to make the water glass that is a 5.2 inch. Now next time that is made is a 5.1 inch, and next time that is made with the 5 inch. That is not a accuracy, it come in the hands work. But due to digitalization and computerized machine, using the making the glass is very speedily, that is made by the very speedily, and various accuracy is come in that. The glass is 5.2 inch, first glass is 5.2 inch, so 100th glass also is the 5.2 inch. That is a speed and accuracy are come in the digitalization. That's why the peoples are used the digitalization process. Now next is technology driven. The digitalization process is totally depend on the technology. We are using the digitalization, all the things are the technology based. For example, your mobile is technology based, your fan is technology based, your air condition technology based, your refrigerator technology based. Means all the appliances we are using in the digitalization, that is depend on the technology. That is a digitalization, one of the characteristics, that is technology driven. Now, spurred creativity. Spurred creativity. What is the spurred creativity? So there we have to say that the new things are made creative. So in the digitalization, the new things are made. For examples, we are taking in the computer example. In the computer, there is a 1998 Windows systems are running. After that, XP is coming, 2003 is coming, after 2007 is coming, after that 2010 we are using, after that 2008, 2010 and 2013, that is the newest in the
market. So all the newest in the market. So that is a creativity. In Android phone, we are seeing that the some apps are running and some apps are not running. In Android phone, before that, the only one camera, back camera is given, and only a front camera, one of the front camera is given. But now the technology spurred creativity. That is in the newness, and that is in the, we are said that is a creative things we are seen in the mobile. There is a 3 cameras are given in the back side. So, and the cameras values also become the huge. And after that, we are seeing that the various types of the technologies are also introduced in that smartphone. So that is the spurred creativity. New things are created in the technologies. So that is possible in the digitalization. There is a spurred creativity is one of the characteristics of the digitalization. Importance to our customers. In the digitalization, we are seeing the very much importance given to the customers. We are purchasing online things, online goods from the online websites or online apps. That is coming in a one day in delivery in our home. That is importance to a customer. When the product is not working properly, you have to call the customer care. Okay, after the customer care calling, the customer representative are coming and see what is the fault in that thing or that goods. So that is in the digitalization, customers importance is very necessary. The digitalization gives a importance to the customers. Okay, so here characteristics are completed. Now for Urdu. हिंदुस्तान में समाजी तब्दीली का अमल, ये सबक की शुरुआत हम पहले ही कर चुके थे. जो आज हम देखने जा रहे हैं इस सबक का हिस्सा है वो है डिजिटल कारी. डिजिटल कारी की एक तारीफ जो गार्टनर के जरिए दी गई है. डिजिटल कारी एक ऐसा तकनीक पर चलने वाला अमल है जिसमें लोग अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद जो डिजिटल कारी है वो डिजिटल कारी सबसे पहले, ये जो लफ्ज़ है कैपेजेमिनी एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसने इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया. और डिजिटल कारी में तरह तरह की चीज़ों का हम डिजिटल काम के ज़रिए काम करते हैं और डिजिटल कारी के ज़रिए बहुत सारी दुनिया में आज चीज़ें चल रही हैं. अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है डिजिटल कारी की खुसूसियात. सबसे पहले जो खुसूसियत है वो है कंप्यूटर पर मबनी. डिजिटल कारी की पहली खुसूसियत जो है वो कंप्यूटर पर मबनी होती है, यानी कंप्यूटर के ज़रिए तमाम काम किया जाता है. कारखानों में जो मशीनें होती हैं वो कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं और उसमें तमाम काम जो किया जाता है कंप्यूटर के ज़रिए ही किया जाता है. आपकी ऑनलाइन पढ़ाई भी आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर के ज़रिए ही हो रही है. जो हमारा स्मार्टफोन है ये कंप्यूटर का ही एक जुज़ है और कंप्यूटर के ज़रिए ही डिजिटल कार्य को का अंजाम दिया जाता है. दूसरी जो खुसूसियत है वो मुसलसल तब्दीली.
मुसलसल तब्दीली, डिजिटल कार्य के अमल में मुसलसल तब्दीली होती रहती है। यानी हम देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर पहले जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते थे वो बिल्कुल ही नहायत ही सादा होते थे, लेकिन आज हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्मार्टफोन है, यानी तब्दीली आ गई। इससे पहले जो हम वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते थे वो 2 चैम्बर वाली होती थी, लेकिन आज जो हम वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है। इसी तरह से आप कितनी ही टेक्नोलॉजी की मिसालें देख लीजिए कि वो टेक्नोलॉजी में मुसलसल तब्दीली आई है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मुसलसल तब्दीली डिजिटल कार्य की एक खुसूसियत है। इसके बाद रफ्तार और दुरुस्तगी। डिजिटल कार्य में रफ्तार और दुरुस्तगी दोनों भी अच्छी तरह से हो सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम एक पानी का गिलास बनाने की कोशिश करें हाथों से, तो उसमें हम कभी उसे बनाने के लिए हमें बहुत वक्त तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब हम उसे बनाएंगे तो कभी वो 5.1 इंच का बन जाएगा, कभी 5.2 इंच का बन जाएगा, कभी 5.3 इंच का बन जाएगा। इस तरह से दुरुस्तगी हमारे काम में नहीं आने वाली। लेकिन डिजिटल कार्य में जब मशीनें इस चीज़ को बनाती है, गिलास को जब बनाएंगी तो वो बहुत ही तेज़ी से बनाएंगी, यानी उसमें रफ्तार होगी, और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि उसमें दुरुस्तगी भी होगी। पहला गिलास अगर 5.1 इंच का है तो 100वां गिलास भी 5.1 इंच का ही होगा। तो रफ्तार और दुरुस्तगी बहुत ज़्यादा डिजिटल कार्य में एक बड़ी खुसूसियत उसकी मानी जा सकती है। उसके बाद तकनीक पर चलने वाला अमल। डिजिटल कार्य जो है वो तकनीक पर चलने वाला अमल है, यानी पूरी तरह से तकनीक पर मबनी होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तकनीक के बिना डिजिटल कार्य बिल्कुल चल नहीं सकती। जैसे हम मिसाल के तौर पर देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं वो तकनीक पर ही मबनी है। जैसे हमारे घर में चलने वाले फ़ैन, हमारे एयर कंडीशनर, हमारे वॉशिंग मशीनें, ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं ये तकनीक पर चलती हैं, और डिजिटल कार्य ये जो अमल है ये तकनीक पर चलने वाला अमल है। इसके बाद ईजादी सलाहियतों को फ़रोग़। ईजादी सलाहियत को फ़रोग़। अब ईजादी सलाहियत जो देखी जाती है वो हमारे समाज में हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ईजादी सलाहियत को बहुत ज़्यादा डिजिटल कार्य में फ़रोग़ दिया जाता है। कि आप देख सकते हैं, आपके मोबाइल की आप मिसाल ले लीजिए कि पहले जो मोबाइल होते थे, एंड्रॉयड मोबाइल में सिर्फ एक सामने का कैमरा और एक पीछे का कैमरा होता था, लेकिन आज ईजाद करते करते आप देख सकते हैं कि नई चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं। आपको 3 कैमरे या 4 कैमरे पीछे आपको दिखाई दे सकते हैं। इसी के अलावा बहुत सारी तब्दीलियां एंड्रॉयड फ़ोन में की जा रही है, स्मार्टफोन में की जा रही है। तो ये क्या है, ईजादी सलाहियत को फ़रोग़ देता है डिजिटल कार्य। नई नई मशीनें हम मार्केट में देखते हैं और नई नई मशीनों के ज़रिए हमारा काम हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद सार्फिन को अहमियत। डिजिटल कार्य में सार्फिन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब अच्छी तरह से जानते हैं कि ख़रीदार जो है इनकी हर तरह के मसाइल को डिजिटल कार्य में पूरा किया जा सकता है। जैसे आप कोई चीज़ ऑनलाइन के ज़रिए या फिर आप ऐप के ज़रिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो अगले ही दिन आपके घर पर पहुंच जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि
उस चीज़ में किसी तरह का कोई मसला हो तो हम कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते हैं। तो कस्टमर केयर से एक आदमी जो आपकी मदद के लिए आता है और वो देखता है कि आपके जो खरीदी हुई चीज़ है इसमें क्या मसला है, वो कितनी ही बड़ी चीज़ हो उसे वो सुधारने की कोशिश करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सार्फिन को या खरीदारों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है डिजिटल कार्य में। नाव फॉर मराठी। भारतातील समाज परिवर्तनाच्या प्रक्रिया हे घटकाची सुरुवात आपण आधीच केली होती। आज आपण जे बघणार आहोत ते आहे अंकीकृतकरण। अंकीकृतकरणाची एक जे व्याख्या आहे गार्टेनर यांनी दिलेली आहे, ते आपण आपल्या पुस्तकामध्ये बघून लिहून घ्या। त्याच्यानंतर जे अंकीकृत करणं आहे हे शब्दाचा पहिल्यांदा जे प्रयोग केला गेला, एक ट्रेडिंग कंपनी आहे त्यांनी त्याचा प्रयोग केला, त्याचं नाव होता कॅपेजिमिनी। या कंपनीने पहिल्यांदा अंकीकृतकरण हे शब्दाचा प्रयोग केला। अब आपल्याला जे बघायचं आहे ते आहे अंकीकृतकरणाची वैशिष्ट्ये। पहिली जी वैशिष्ट्य आपल्याला दिलेली आहे ते आहे संगणकीकरण। म्हणजे अंकीकृतकरणामध्ये आपल्याला संगणकीकरण व संगणकचा उपयोग खूप जास्त पद्धतीमध्ये दिसून येते। आपल्याला माहीत आहे खूप प्रकारची नवीन नवीन मशिनरी आपल्या देशामध्ये व जगामध्ये चाललेली आहे। त्या मशिनरीमध्ये संगणकाचा खूप प्रयोग होतो आणि संगणक आधारेच ते मशीनी चालतात। तर आपल्याला हे बघायचं, हे दिसून येते की संगणकीकरण हे एक वैशिष्ट्य आहे अंकीकृतकरणाची। याच्यामध्ये संगणकाचा खूप प्रयोग केला जातो। त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायचं आहे फ्रिक्वेंट चेंज म्हणजे सातत्याने बदल होणे। त्याला कसं लिहायचं सातत्याने? सातत्याने बदल होणे। अंकीकृतकरणामुळे आपण बघू शकता की सातत्याने बदल चाललेले आहे। आपण बघू शकता आपल्या समोरासमोर आपल्याला कितीही असे व्यक्ती दिसतात व अशी कितीही आपल्याला मशिनरी दिसतात ज्याच्यामध्ये सातत्याने बदल झालेले आहे। आपण उदाहरणार्थ घेऊ शकता की आपण 10 ते 15 वर्षापूर्वी एक साधा मोबाईल वापरायचा, पण आज जे आहे आपल्याकडे स्मार्टफोन आहे। कम्प्युटर आपण संगणक जे वापरायचा ते संगणक आपला साधा असायचा, पण आज जे आहे ते आपल्याकडे लॅपटॉप आहे। त्याच्यानंतर आपण वॉशिंग मशीन जे वापरायची, वॉशिंग मशीन हे 2 चेंबराची असायची। आज जे आहे आपल्याकडे पूर्णतः ऑटोमॅटिक वॉशिंग मशीन आलेली आहे। तर हे काय झालं, सातत्याने बदल होत आहे कशामध्ये? टेक्नॉलॉजीमध्ये। व त्याला आपण म्हणू शकता की अंकीकृतकरणाची एक वैशिष्ट्य आहे की सातत्याने बदल होत असते। त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे वेग आणि अचूकता। आपण बघू शकता की अंकीकृतकरणामुळे आपल्याला वेग आणि अचूकता मिळालेली आहे। त्याच्यामध्ये आपण उदाहरणार्थ बघू शकता की एक आपण गिलास बनवायची सुरुवात केली हाताने, तर कधी आपल्याला वेळ तर खूप लागणारच, पण कधी आपण
ते गिलास जे आहे ते 5.1 इंचचा, 5.2 इंचचा व 5.3 इंचचा बनवणार. तर त्याच्यामध्ये काय झाला, ते अचूकता नाही आली. पण जेव्हा संगणकाचे उपयोगाने व मशिनरीचे उपयोगाने जेव्हा कोणतीही वस्तू बनवली जातात त्याच्यामध्ये वेग तर येतच आणि अचूकता पण येईल. त्याच्यामध्ये मशिनरीने बनलेले गिलास पूर्णतः 5.1 इंचचे असणार. तर हे काय झाला, वेग आणि अचूकता हे वैशिष्ट्य आहे अंकीकृतकरणाची. त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायचे आहे ते आहे तंत्रज्ञान केंद्रित प्रक्रिया. अंकीकृत करण्याची प्रक्रिया कशी आहे, तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. तंत्रज्ञानमध्ये खूप बदल होत असतात आणि ते फक्त तंत्रज्ञानावर चालणारी प्रक्रिया आहे. तंत्रज्ञान नसेल तर हे प्रक्रिया चालू शकत नाही. तर तंत्रज्ञानावर आधारित हे प्रक्रिया आहे आणि तंत्रज्ञानावरच चालणारी हे प्रक्रिया आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायचे आहे निर्मितीशीलतेची चालना. निर्मितीशीलता हे खूप आपल्याला दिसून येते. आपण उदाहरणार्थ बघू शकते की निर्मितीशीलता म्हणजे काय, नवीन नवीन गोष्टी लोकांच्या समोर आणणं हे आपल्याला अंकीकृत करण्यामध्ये दिसून येते. आपण आपला मोबाईल फोन बघू शकता की पहिले जे अँड्रॉइड मोबाईल फोन होते त्याच्या मागच्या साईडला एक कॅमेरा होता, पण आता जे स्मार्टफोन आलेले आहे त्याच्या मागच्या साईडला आपल्याला 3 किंवा 4 कॅमेरा दिसतात आहे. तर हे काय झालं, निर्मितीशीलता झाली आणि लोकांमध्ये खूप नवीन नवीन गोष्ट व नवीन नवीन पद्धतचे कार्य करणे व नवीन नवीन मशिनरी बनवण्याची निर्मितीशीलता हे आपल्याला अंकीकृत करण्यामध्ये दिसत आहे. त्याच्यानंतर ग्राहकांना महत्त्व. अंकीकृत करण्यामुळे आपण बघू शकता की ग्राहकांना खूप महत्त्व मिळालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की ग्राहकांना खूप महत्त्व दिलं जातोय. आपण कोणताही पदार्थ व कोणतीही वस्तू ऑनलाईनद्वारे मागितली तर आपल्याला दिसते की ते वस्तू आपल्याला एकच दिवसानंतर आपल्या घरीवर भेटून जाते. त्याच्यानंतर आपण बघू शकता की ग्राहकांना खूप महत्त्व असं दिलं जाते की त्या वस्तूमध्ये कोणताही असा आपल्याला समस्या आली तर आपण कॉल सेंटरला जेव्हा कॉल करतो तो कॉल सेंटर आपला माणूस पाठवते आणि माणूस पाठवल्यानंतर त्याची जे दुरुस्तीगी आहे ते होऊन जाते. तर हे ग्राहकांना खूप महत्त्व दिलं जातो. हे कशामुळे, आपल्या अंकीकृत करण्यामुळे. तर हे आपला जे घटक होता इथे संपत आहे. धन्यवाद.